Hello, my dear viewers. I am Anwar Hussain Barbiya. Welcome you to your channel AHB Physics. We are studying class 12 physics, and in class 12 physics we are studying alternating current. For alternating current we have already gone for 11 lectures, so this will be the 12th lecture in alternating current. With this lecture we are about to finish the theoretical portion in alternating current. So in the last class we have studied transformer, and the last topic today we are going to study is LC oscillations. So in this class we will study about LC oscillations. So what is LC oscillation that we are going to study later on? First you listen about what is an inductor and a capacitor. We know that inductor and capacitor both are the electrical devices. We have three devices: resistors, inductors and capacitors. What does resistor do? The resistor dissipates electrical energy in the form of resistor dissipates electrical energy in the form of heat. Inductor stores electrical energy in the form of magnetic field. The capacitor stores the electric energy in the form of electric field. That means we can simply say that the capacitor and inductor can store electrical energy in the form of electric field and magnetic field. That means if we consider any parallel plate capacitor, say this is the parallel plate capacitor. Suppose these are the two plates of the capacitor. One of the plate of the capacitor is positively charged, the other plate is negatively charged. So there will be electric field in between the two plates. So that means if we charge this capacitor plates, one of the plate will have a charge plus Q, the other plate will have a charge minus Q. There will be an electric field in between the plate. That means what we are doing, we are charging this capacitor plate say with the help of a battery having potential difference V. तो अगर हम कैपेसिटर का प्लेट्स को किसी एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V से चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर का एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आता है, कैपेसिटर का दूसरा प्लेट में नेगेटिव चार्ज आता है. तो चार्ज स्टोर होने की वजह से कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैपेसिटर पे एक एनर्जी आता है. सो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? हम लोग इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इट इज गिवन एज 1/2 Q²/C, और इट इज़ 1/2 CV², और इट इज़ 1/2 QV. तो ये तीन फॉर्मूला है. सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन एज 1/2 Q²/C. और कैपेसिटर के अंदर पे जो एनर्जी स्टोर होता है कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी भी कैपेसिटर को अगर हम लोग चार्ज करते हैं तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है. सिमिलरली इफ़ यू कंसिडर एन इंडक्टर, मान लीजिए हमारे पास कोई एक इंडक्टर है, से दिस इज द इंडक्टर. इस इंडक्टर के अंदर पे अगर हम किसी करंट गुजारते हैं, से देयर इज ए बैटरी. With the help of battery we are passing a current through this inductor. Suppose the current through inductor is I. So if we consider the current like this, there will be magnetic field along the axis of the inductor, and we can say that there is magnetic field inside the inductor. So we can say that the energy stored in the inductor is in the form of magnetic field, and the energy stored in inductor is given as half Li². So where we have studied this? We have studied this in chapter 2. ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा है? चैप्टर 2 में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में. इसको हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा है? हम लोगों ने इसको चैप्टर 6 में पढ़ा है. ये कहाँ पे पढ़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे. इसका मतलब अगर हम किसी एक कैपेसिटर को किसी बैटरी को लगा के चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर का चार्ज स्टोर की वजह से कैपेसिटर के अंदर पे एक इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है. उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी. और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो होता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1/2 Q²/C होता है. व्हाट इज दिस Q? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. व्हाट इज C? इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है. किसी एक इंडक्टर को अगर हम किसी एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं, इंडक्टर के अंदर से अगर एक करंट फ्लो करता है तो इंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करेगा, करंट की वजह से इंडक्टर के अंदर पे एक एनर्जी स्टोर होता है. कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? हाफ Li² होता है. नाउ अगर हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है, मान लीजिए ये कोई एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे अगर हम लोग कोई एक इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, दिस इज एन इंडक्टर. इस कैपेसिटर और इंडक्टर को हमें कैसे कनेक्ट करना है? हमें पैरेलली कनेक्ट करना है. मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अक्रॉस में हमने कैपेसिटर और इंडक्टर को लगाया है. इनिशियली मान लीजिए कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर इज़ फुल्ली चार्ज. पहले आप स्टोरी को सुनिए अच्छी तरीके से तो फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. सो इनिशियली वी आर एज्यूमिंग दैट द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज. जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो क्या होगा?
कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और इंडक्टर के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तो कैपेसिटर का मान लो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट क्या है नेगेटिवली चार्ज है, तो कैपेसिटर क्या करता है अपने अंदर से चार्ज को डिलीवर करेगा, चार्ज को फ्लो कराएगा, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगा। ये करंट किसके ऊपर से फ्लो होगा, इंडक्टर के ऊपर से फ्लो होगा। तब क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के अंदर का जो चार्ज है, कैपेसिटर के अंदर क्या है चार्ज है, वो चार्ज डिक्रीज़ होगा। चार्ज डिक्रीज़ होने से सर्किट पे करंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और सर्किट पे करंट इंक्रीज़ होने की वजह से इस इंडक्टर के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बनेगा। तो कैपेसिटर के अंदर जब चार्ज था, कैपेसिटर का चार्ज को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, कैपेसिटर का एनर्जी को बोल सकते हैं 1/2 Q²/C। कैपेसिटर अपने अंदर से चार्ज को डिक्रीज़ कर रहा है, करके किसको दे रहा है, इंडक्टर को दे रहा है। तो इंडक्टर के अंदर जब एनर्जी आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 12LI²। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कैपेसिटर अपने अंदर से चार्ज को किसको दे रहा है, इंडक्टर को दे रहा है। अब मान लीजिए कैपेसिटर पूरा एनर्जी को इंडक्टर को दे देता है, इंडक्टर कैपेसिटर का एनर्जी तब क्या बन जाएगा, कैपेसिटर ने पूरा चार्ज दे दिया, इसका मतलब कैपेसिटर का एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। कैपेसिटर का पूरा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैपेसिटर ने अपना अंदर का सारा चार्ज को इंडक्टर को दे दिया, तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, फुल्ली एनर्जाइज्ड हो जाएगा। इंडक्टर जब फुल्ली एनर्जाइज्ड हो जाएगा, पूरा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इंडक्टर जब फुल्ली एनर्जाइज्ड हो जाएगा, फिर इंडक्टर क्या करता है, अपने अंदर से करंट को फिर डिस्चार्ज, करंट को थ्रो करता है। तो करंट क्या होता है, आता है, आके फिर क्या करता है, इस कैपेसिटर को चार्ज करता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो इंडक्टर है, इंडक्टर का अंदर का मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपने अंदर सारे चार्जेस को डिलीवर कर देगा। तो सारे एनर्जी जो है, सारे चार्जेस जो है इंडक्टर से कहाँ पे आ जाएगा, फिर कैपेसिटर में आ जाएगा। तो फिर कैपेसिटर के अंदर पूरा एनर्जी आ जाएगा और इंडक्टर 0 हो जाएगा। फिर कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर से क्या करता है, इंडक्टर को एनर्जी देता है, फिर इंडक्टर क्या करता है, कैपेसिटर को देता है। तो कैपेसिटर इंडक्टर को देते रहता है, इंडक्टर कैपेसिटर को देते रहता है, और ये प्रोसेस साइक्लिक होते रहता है। इससे होता क्या है, इससे जो चार्जेस है, चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम इंडक्टर टू फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर एंड अगेन फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर। इस प्रोसेस में चार्जेस का क्या होता है, ऑसिलेशंस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, चार्जेस का ऑसिलेशंस होता है, और इन ऑसिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसी ऑसिलेशंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एलसी ऑसिलेशंस, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाउ एलसी ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड, मींस ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एलसी ऑसिलेशन, वहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करेंगे और इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट उसको भी डिटरमिन करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रियलिस्टिक नेचर ऑफ एलसी ऑसिलेशन, क्या एलसी ऑसिलेशन रियलिस्टिक होता है या नहीं होता है। तो इन टॉपिक्स में हमारा ये जो क्लास है वो पूरा घूमेगा। तो हमारा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन का कहानी आपको समझ में आ गया। एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, मीन्स ऑसिलेशंस होता है। किसका ऑसिलेशंस होता है, चार्जेस का ऑसिलेशंस होता है। चार्जेस का ऑसिलेशंस क्यों होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे एज्यूम करेंगे कि एक कैपेसिटर जो है इनिशियली फुल्ली चार्ज्ड है, फिर उस कैपेसिटर को एक पैरेलल कनेक्शन में लगाएंगे, किसके साथ, इंडक्टर के साथ। तो कैपेसिटर क्या करेगा, अपने अंदर का जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको किसको देगा, इंडक्टर को देगा। तो कैपेसिटर के अंदर का एनर्जी कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो कैपेसिटर अपने अंदर का एनर्जी को जब इंडक्टर को देगा, तो इंडक्टर क्या करेगा, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बना के। फिर कैपेसिटर क्या हो जाएगा, पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होकर पूरा एनर्जी किसको दे देगा, इंडक्टर को दे देगा। और इंडक्टर क्या करेगा, अपने अंदर पूरा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर लेगा। तब इंडक्टर क्या करेगा, अपना एनर्जी जो है, मैग्नेटिक एनर्जी जो है, वो फिर कैपेसिटर को देगा। तो कैपेसिटर फिर से स्टोर होगा, चार्ज होगा। तो कैपेसिटर फिर से चार्ज को स्टोर करेगा, तो फिर इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फिर इंडक्टर उस केस में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो रहा है। इस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, चार्जेस ऑसिलेट करता है। कहाँ से कहाँ जाता है, इंडक्टर से कैपेसिटर, और कैपेसिटर में इंडक्टर पे बीच में ऑसिलेट करते रहता है। इस ऑसिलेशंस की वजह से एक ऑसिलेशन पैदा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है व्हाट इज एलसी ऑसिलेशन। दीज आर द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस आर द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस produced due to the exchange of energy between a capacitor
and an inductor, the electrical oscillations produced due to the exchange of energy between a capacitor and an inductor are called LC oscillations, are called LC oscillations। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, the electrical oscillations, so LC oscillations are the electrical oscillations produced due to the exchange of energy। यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर अपना एनर्जी को इंडक्टर को देता है, इंडक्टर अपना एनर्जी को कैपेसिटर को देता है। तो ये प्रोसेस ऐसे होते रहता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का प्रोसेस में क्या होता है, ऑसिलेशंस पैदा होता है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस पैदा होता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, LC ऑसिलेशंस बोलते हैं। सो इसको हम लोग अगर मोर प्रिसाइजली ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, मीन्स इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, व्हेन ए चार्ज्ड कैपेसिटर is allowed to discharge, when a charge capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor, through a non-resistive inductor। तो यहाँ पे हम लोग एक कहानी लिख रहे हैं, व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर, मीन्स जब हमारे पास कोई एक चार्ज कैपेसिटर होगा, मान लीजिए फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, इज अलाउड टू डिस्चार्ज, उसको अगर हम लोग अलाउ करेंगे डिस्चार्ज होने के लिए थ्रू ए नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर। कहाँ पे डिस्चार्ज होना, एक नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर। तो अगर कोई भी इंडक्टर होता है, इंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर। इसका मतलब ये आइडियल केस है, मीन्स हमारा जो इंडक्टर है वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं है। सो व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू ए नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, जब हम किसी एक चार्ज कैपेसिटर को अलाउ करेंगे डिस्चार्ज होने के लिए, किसके ऊपर, किसी एक नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर के ऊपर, व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू ए नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड and frequency are produced, and frequency are produced called LC oscillations। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जब एक चार्ज कैपेसिटर को अलाउ करेंगे डिस्चार्ज होने के लिए, किसके ऊपर, किसी एक नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर के ऊपर, तब इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस पैदा होता है। जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस पैदा होता है उनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है एंड फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होता है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, LC ऑसिलेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट, ए सर्किट कंटेनिंग a circuit containing an inductor and a capacitor, a circuit containing an inductor and a capacitor in parallel is called a tank circuit, is called a tank circuit। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, A circuit containing an inductor and a capacitor in parallel is called a tank circuit। तो अगर हम लोग बोलते हैं हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है, से यहाँ पे कोई एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे अगर हम लोग एक इंडक्टर को लगाते हैं, मान लीजिए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, इनको अगर हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर को, इस सर्किट को कहा जाता है टैंक सर्किट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंक सर्किट बोलते हैं। द टैंक सर्किट acts as acts like a frequency determining circuit। The tank circuit acts like a frequency determining circuit। तो जो टैंक सर्किट होता है वो क्या करता है, सर्किट का फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन करता है। कैसे डिटरमिन करता है, हम लोग आगे जाके डिराइव करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन एज 1/2π√LC, ये हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो टैंक सर्किट का जो चार्ज का ऑसिलेशन होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1/2π√LC। इसीलिए टैंक सर्किट को क्या कहा जाता है, टैंक सर्किट को फ्रीक्वेंसी डिटरमिनिंग सर्किट भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको पोज मारिए, जल्दी जल्दी लिखिए।
हो गया। ये सबसे मुसीबत वाला काम है। Now we'll study the phenomenon of LC oscillation. Means LC oscillations कैसे पैदा होता है? Phenomenon of LC oscillations. LC oscillation कैसे पैदा होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे टोटल 5 सर्किट कंसीडर करने वाला। सबसे पहला जो सर्किट है, यहाँ पे मेरे पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। इन दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? द इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे मैंने एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट किया है, ठीक है। फिर एक सेकंड सर्किट है, ये हमारा सेकंड सर्किट है। यहाँ पे भी हम लोग एक इंडक्टर कंसीडर करेंगे और एक कैपेसिटर कंसीडर करेंगे। दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर जो है पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये हमारा सेकंड सर्किट है। फिर हम लोग एक थर्ड सर्किट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे भी एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमारा फोर्थ सर्किट है। यहाँ पे भी एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये 5 सर्किट मिलके हमारा एक कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी बनेगा। हम लोग आके जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, ये कनेक्टेड इन पैरेलल है, तो इनको हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। तो ये पांचों कम्बिनेशन क्या है? दिस इज़ द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर है। तो यहाँ पे पॉइंट क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये नोड लगे और यहाँ से ये दोनों कैसा है? पैरेलल है। सपोज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C, इंडक्टेंस इज L, कैपेसिटेंस इज C, इंडक्टेंस इज L, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C, इंडक्टेंस इज L, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C, इंडक्टेंस इज L, कैपेसिटेंस इज C, इंडक्टेंस इज L, ठीक है। ये हमारा पहला कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं चार्ज मैक्सिमम कंडीशन। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? चार्ज जो है वो मैक्सिमम है। चार्ज मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है? वी आर एज्यूमिंग दैट एट t इक्वल टू 0, टाइम जब 0 होता है तो चार्ज Q जो है वो मैक्सिमम है। चार्ज कितना है? मैक्सिमम है। इसका मतलब हमारा कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज्ड है। इस कंडीशन में जो पूरा एनर्जी होगा वो कौन सा एनर्जी होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1/2 QM² डिवाइडेड बाई C, 1/2 Q²/C। तो Q के जगह पे क्या हो जाएगा? चार्ज मैक्सिमम है तो Q²/C। तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है और हमारा जो इंडक्टर है वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, डी एनर्जाइज्ड है। तो इसका मतलब इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होगा, अगर मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज 0। अच्छी तरीके से सुनो, पहला कंडीशन में हमने एज्यूम किया कि हमारा जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज है। इसका मतलब इट इज़ द कंडीशन ऑफ चार्ज मैक्सिमम। कैपेसिटर के अंदर पूरा चार्ज है, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 चार्ज Q इक्वल टू QM है। इसका मतलब पूरा एनर्जी किसके ऊपर है? कैपेसिटर के ऊपर है। तो इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज गिवन एज 1/2 QM²/C। इट इज़ 1/2 Q²/C है, तो Q के जगह पे QM डालेंगे तो QM²/C हो जाएगा। इंडक्टर जो है वो पूरा डी एनर्जाइज्ड है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज 0 है। दूसरा जो कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं करंट मैक्सिमम कंडीशन। करंट मैक्सिमम कंडीशन। अब देखिए हमारा कैपेसिटर के अंदर अभी पूरा चार्ज है, तो कैपेसिटर क्या करेगा? अपने अंदर से एक करंट को डिलीवर करेगा। चार्ज को छोड़ेगा ना, तो चार्ज जब छोड़ेगा तो क्या होगा? करंट जाएगा। करंट किसके ऊपर फ्लो करेगा? द करंट विल फ्लो थ्रू इंडक्टर।
इंडक्टर के ऊपर अगर मान लीजिए करंट ऐसे जाता है, ऐसे आके ऐसे फ्लो करता है, तो करंट कैसा है, ऐसा है, सो देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द इंडक्टर। तो इंडक्टर के अंदर से क्या होगा, इंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बी। तो चार्ज उधर से आता रहेगा, ऐसा एक कंडीशन होगा कि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, सारा चार्ज जो है कहाँ पे फ्लो हो जाएगा, इंडक्टर के ऊपर फ्लो हो जाएगा। सो यू कैन से दैट द इंडक्टर इज कम्प्लीटली मैग्नेटाइज एंड द कैपेसिटर इज कम्प्लीटली डिस्चार्ज। कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 1/2 Li²। ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर इज 1/2 Li²। मीन्स कैपेसिटर ने अपने अंदर का सारा चार्जेस को इंडक्टर को दे दिया, खुद डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इसीलिए कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितना हो जाएगा, ½ Li² हो जाएगा। अब इस थर्ड कंडीशन में आते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, चार्ज मैक्सिमम होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, चार्ज मैक्सिमम होता है। यहाँ पे कैसे होता है, हमारा इंडक्टर जो है, इंडक्टर के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है, तो इंडक्टर क्या करेगा, अपने अंदर से अंदर पे जो एनर्जी है उसको क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, किसको देगा, कैपेसिटर को देगा। तो कैपेसिटर अब क्या होगा, द कैपेसिटर विल रिचार्ज। कैपेसिटर अभी कैसा क्या हो करेगा, कैपेसिटर विल रिचार्ज, बट द कैपेसिटर विल रिचार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इंडक्टर ने अपने अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है उसको करंट बना के किसको दिया, कैपेसिटर को दिया। तब क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, लेकिन ये पहले के केस के उल्टा चार्ज होगा। पहले चार्ज इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, तो करंट इधर आया। अब ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, ये करंट को इधर से देगा, तो कैपेसिटर का ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा जो इंडक्टर है ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, और पूरा एनर्जी किसके ऊपर आ जाएगा, फिर से कैपेसिटर के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब 1/2 Qm²/c, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर फिर से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थर्ड कंडीशन में इंडक्टर ने अपना एनर्जी को कैपेसिटर को दे दिया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर कैसे चार्ज हुआ, ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब अब कैपेसिटर क्या करेगा, अपने अंदर का जो चार्ज है उसको फिर से इंडक्टर को देगा। तो कैपेसिटर कैसे इंडक्टर को देगा, ऐसे देगा, तो ऐसे आएगा, आके अभी इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बनेगा वो पहले के डायरेक्शन में उल्टा बनेगा। पहले किधर बन रहा था, इधर, अभी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कैसे बनेगा, ऐसे उल्टा डायरेक्शन में बनेगा। तो कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे फिर से करंट मैक्सिमम कंडीशन आ गया, करंट मैक्सिमम कंडीशन आ गया। कैपेसिटर ने अपने अंदर का चार्जेस को इंडक्टर को दे दिया, इंडक्टर अभी क्या हो जाएगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर फिर से कितना हो जाएगा, 0, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनर्जी कितना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर कितना हो जाएगा, ½ Li² है। ठीक है, अब इंडक्टर जो है फुल्ली फिर से क्या हो गया, एनर्जाइज्ड हो गया। अब इंडक्टर क्या करेगा, अपने अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो फिर से डीमैग्नेटाइज करेगा, मैग्नेटाइज करके क्या करेगा, कैपेसिटर को फिर से चार्ज करेगा। तो कैपेसिटर अभी चार्ज होगा, लेकिन ये कौन सा केस के जैसा होगा, इसके उल्टा। तो इसका मतलब ये पहला इनिशियल केस फिर से पहुंच जाएगा। तो कैपेसिटर फिर से क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, चार्ज स्टोर कर लेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज मैक्सिमम कंडीशन बोलेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा, 1/2 Qm²/c, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। इंडक्टर फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, अपना एनर्जी किसको दे देगा, कैपेसिटर को दे देगा। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, इंडक्टर डीमैग्नेटाइज था, तो कैपेसिटर ने चार्ज को दिया इंडक्टर को, इंडक्टर मैग्नेटाइज हुआ। इंडक्टर मैग्नेटाइज होने के बाद इंडक्टर अब क्या करता है, इंडक्टर इस केस में क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। फिर इंडक्टर क्या करता है, डीमैग्नेटाइज होके अपना चार्ज को किसको देता है, कैपेसिटर को देता है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर फिर से चार्ज होता है। कैपेसिटर ये चार्ज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, चार्ज करंट चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज मैक्सिमम है। इसका मतलब इंडक्टर अपने अंदर का एनर्जी को कैपेसिटर को देता है, तो कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर का चार्ज को जो है मैक्सिमाइज कर लेता है, मीन्स चार्ज मैक्सिमम कंडीशन आ जाता है। फिर कैपेसिटर क्या करता है, डिस्चार्ज करता है इंडक्टर के अंदर, तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आ जाता है, तो पूरा कैपेसिटर का एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे फिर क्या करता है, इंडक्टर डिस्चार्ज करता है कैपेसिटर के ऊपर, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है और इंडक्टर फिर से क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। नाउ इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन the amplitude of current with time and the charge with time, means इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बोलते हैं करंट है और इट इज़ चार्ज है, करंट और चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और इधर कौन सा इस डायरेक्शन में हम लोग क्या ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग टाइम t को लेते हैं, तो इनिशियली देखिए इस कंडीशन में चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मान लीजिए ये मैक्सिमम चार्ज है,
तो ऐसे हल्का सा एक लाइन अगर आपको ड्रॉ करना है ऐसे कर सकते हैं, बाद में मिटा देंगे, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा। इनिशियली क्या होता है, चार्ज मैक्सिमम होता है, इसका मतलब यहाँ पे है चार्ज इज मैक्सिमम है, इनिशियली क्या है, चार्ज इज मैक्सिमम, Q इक्वल टू क्यू एम है। लेकिन इंडक्टर का एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है, उसमें बाद में जा रहे हैं। फिर बाद में क्या करेगा, ये अपने अंदर का चार्ज को डिस्चार्ज करेगा किसके ऊपर, इंडक्टर के ऊपर, तो ये चार्ज घटता जाएगा, ऐसा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद ये कहाँ पे जाएगा, ये नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जाएगा, नेगेटिव मैक्सिमम होगा, ये फिर बढ़ेगा, फिर ये क्या जाएगा, पॉजिटिव साइकिल में जाएगा, पॉजिटिव मैक्सिमम होने के बाद ये फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया, मान लीजिए एक साइकिल है। जब चार्ज मैक्सिमम होता है, जब चार्ज मैक्सिमम होता है तो करंट कितना होता है, करंट जो है जीरो होता है, इसका मतलब इस केस में करंट कितना है, जीरो है। नेक्स्ट, तो ये अगर जीरो है, अब यहाँ पे देखिए इस केस में क्या है, इस केस में हमारा चार्ज मैक्सिमम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितना है, जीरो है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है वो जीरो होता है। तो कैसे होगा, यहाँ से यहाँ पहले क्या था, चार्ज ज़्यादा था, तो अभी क्या होगा, चार्ज डिलीवर्ड होगा तो क्या होगा, करंट आने लगेगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होने लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर मैक्सिमम होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी फिर से डिक्रीज़ करेगा, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज मैक्सिमम है, यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है, करंट कितना है, जीरो है। यहाँ पे क्या है, करंट मैक्सिमम है, चार्ज कितना है, जीरो है, इसका मतलब करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, जीरो है। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जीरो होगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, चार्ज जो है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितना है, जीरो है। फिर यहाँ पे जाएगा तो ये कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव मैक्सिमम में जाएगा, ये नेगेटिव मैक्सिमम में जाएगा। फिर ये कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। यहाँ पे लास्ट में देख लीजिए, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो है फिर से मैक्सिमम हो जाएगा लास्ट केस में। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 केस है, तो 1 2 3 4 5 इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम होता है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जीरो है। पहला केस में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है मैक्सिमम है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, तो सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितना है, जीरो है। थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितना है, जीरो है। फोर्थ केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितना है, जीरो है, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितना है, मैक्सिमम है। फिफ्थ केस में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है मैक्सिमम है, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितना है, जीरो है। तो ये साइकिल जो है कंटिन्यू होता रहेगा। तो इस जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए ये जीरो है, तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, किसका एम्पलीट्यूड है, इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और चार्ज, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और चार्ज। नाउ यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बोला है वही एक्सप्लेनेशन आपको अगर एग्जाम में आता है तो लिखना है। ये फिगर आप अच्छी तरीके से ड्रॉ करोगे तो वहीं पे आपको मार्क मिल जाएगा। मान लीजिए 3 मार्क का भी आता है तो आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 2 मार्क। बाकी आपको वर्ड्स में ही बोलना है, इनिशियली कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है, वो कहानी पूरा लिखना है। इस कहानी को समझने के लिए आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक को निकाल के इस टॉपिक को अच्छी तरीके से एक बार रीडिंग मारिए अच्छी तरीके से, तो आपका दिमाग में आ जाएगा एलसी ऑसिलेशन कैसे पैदा होता है, इसका थ्योरी आपका दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, सो अभी पोज मारिए, इस पार्ट को लिखिए। हो गया?
फिर हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशन, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशन, इसको हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशन, और इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी भी मिलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन। तो अब तक हमें पता चल गया कि चार्ज का ऑसिलेशन होता है, इन ऑसिलेशंस को हम लोग बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। अगर चार्ज का ऑसिलेशन होता है तो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन कितना होगा यह हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है, हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है। मान लो ये कोई एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो है इनिशियली फुल्ली चार्ज्ड है। तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ QM है, ठीक है। इस कैपेसिटर को अगर हम पैरेलली किसी एक इंडक्टर पे कनेक्ट करेंगे, से ये इंडक्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस ये इंडक्टर का दो टर्मिनल है। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर वो एक वायर लगाएंगे, यहाँ से एक वायर लगाएंगे, तो ये दोनों कैसे अभी पैरेलल में है, ठीक है। तो इनिशियली हमारा चार्ज जो है मैक्सिमम में कैपेसिटर, मान लीजिए द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज L है। तो सबसे पहले आपको कंसिडर करना है एक टैंक सर्किट। कंसिडर ए टैंक सर्किट, कंसिडर ए टैंक सर्किट containing an inductor and a capacitor, containing an inductor and a capacitor in parallel। एक सेकेंड देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। सो कंसिडर ए टैंक सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर इन पैरेलल। तो हमने यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर लिया है, दोनों कैसा है, पैरेलल है। Initially the capacitor is fully charged, initially the capacitor is fully charged। इनिशियली हमने माना है कि कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज है। इसका मतलब क्या है, एट t इक्वल टू 0 चार्ज q इक्वल टू क्या है, QM है। तो इनिशियली जो है हमारा कैपेसिटर क्या है, फुल्ली चार्ज है। तो कैपेसिटर के अंदर चार्ज कितना है, मैक्सिमम है। एज द सर्किट इज क्लोज्ड, as the circuit is closed, circuit is closed, जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे, the charges begins to flow through inductor, the charges begins to flow through inductor and hence current grows। इसका मतलब मान लीजिए इनिशियली अगर हमारा सर्किट ओपन है, फिर हमने सर्किट को क्या किया, क्लोज किया। जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे, द सर्किट इज क्लोज्ड, द चार्जेस बिगिन टू फ्लो थ्रू इंडक्टर। तो कैपेसिटर के अंदर के चार्जेस जो है वो किधर फ्लो करने शुरू करेंगे, इंडक्टर के थ्रू फ्लो करना शुरू करेंगे। एंड हेंस करंट फ्लो, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट ग्रो करेगा, भी करंट बढ़ेगा। और नीचे लेट Q and I be the charge and current in the circuit, let current in the circuit at any time t। तो ये कहानी क्या है, लेट Q and I be the charge and current in the circuit at any time t। मान लीजिए अगर हम लोग सर्किट के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज को अगर मानते हैं Q और करंट को अगर मान लेते हैं I, be the charge and current in the circuit at any time t। किसी भी टाइम t पे अगर चार्ज को मान लेते हैं Q और करंट को मान लेते हैं I। ना इफ़ यू अप्लाई KVL, तो यहाँ से आपका मेन मैथमेटिकल पार्ट शुरू होता है। अप्लाइंग KVL इन लूप, हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप माइनस इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो क्या कर रहा है, फीड कर रहा है इंडक्टर को। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू Q/C। सो Q/C माइनस L di/dt विल बी इक्वल टू 0।
तो कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, Q बाई सी। इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, L डी बाई डी टी विल बी इक्वल टू 0। हियर I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे जो I है वो है माइनस डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे जो करंट I है वो माइनस डी क्यू बाई डी टी है, Q है। सिंस एज Q डिक्रीजेस I इंक्रीजेज। जब चार्ज डिक्रीज होता है तब आपका करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसीलिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। सो वी कैन से दैट Q बाई सी माइनस L डी डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, सो माइनस L सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी, माइनस डी क्यू बाई डी टी होगा माइनस डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले पोज मारिए, इस पार्ट को लिखिए। हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई सी प्लस Q बाई सी प्लस L डी स्क्वायर Q डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। Q बाई सी प्लस L डी स्क्वायर Q डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, L डी स्क्वायर Q डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस Q बाई सी विल बी इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी क्यू इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ ये इक्वेशन 1 है, तो ये इक्वेशन आप लोगों को ऐसे इक्वेशन आपको मिला है क्लास 11 में। दिस इक्वेशन हैज़ द फॉर्म डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के जैसे बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है, क्यू है। सो इसका मतलब ये सेम इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये जो 1 बाई एल सी ओमेगा नॉट स्क्वायर इजिकल टू क्या है, 1 बाई एल सी है। तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। इसका मतलब 1 बाई रूट एल सी क्या हो जाएगा, इट विल बी द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द चार्जेस इन द सर्किट oscillates at a natural frequency with omega naught is equal to 1 by LC, omega naught square equal to 1 by LC। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं न्यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी, क्योंकि ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई न्यू नॉट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब न्यू नॉट अगर लिख देंगे देन इट इज़ 1 बाई 2 पाई रूट एल सी। सो व्हाट इज दिस न्यू नॉट, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। ये न्यू नॉट क्या है, इसीलिए बोला है देयरफॉर द चार्जेज इन द सर्किट
ऑसिलेट एट ए नेचुरल फ्रिक्वेंसी, तो उस सर्किट में चार्जेस का जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा दैट नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज 1/2 पाई अंडर रूट LC है। सो अगर हम लोग बोलते हैं लेट द इंस्टेंटेनियस चार्ज, फ्रिक्वेंसी मिल गया, अभी इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे। लेट द इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस चार्ज इज, इंस्टेंटेनियस चार्ज से Q इज इक्वल टू QM। हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन फंक्शन भी ले सकते हैं, कोसाइन फंक्शन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कोसाइन फंक्शन। सो Q इज इक्वल टू QM कॉस ऑफ ओमेगा नॉट T प्लस 5 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सो चार्ज Q इज द इंस्टेंटेनियस चार्ज, QM इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, ओमेगा नॉट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई इज फेज कांस्टेंट। ये तो आपको पता ही है। वेयर QM क्या है, QM इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, इज द maximum value of charge, QM is the maximum value of charge and phi जो है, phi को हम लोग क्या बोलते हैं, phi is the phase constant, phi को हम लोग phase difference भी बोलते हैं या फिर phase constant भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इसको पोज मारिए, यहाँ तक लिखिए। तो अभी तक हमें क्या मिला है, KVL को अप्लाई करके जो इक्वेशन मिला, उस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिला, उस इक्वेशन का जो फॉर्म है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन का फॉर्म है। तो इससे हमें ओमेगा नॉट स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1/LC मिला है। इससे हम लोग बोल सकते हैं जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो है 1/2 पाई अंडर रूट LC। इसका मतलब LC ऑसिलेशन का जो फ्रिक्वेंसी है, चार्ज का जो ऑसिलेशन का फ्रिक्वेंसी है, द ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी इज 1/2 पाई अंडर रूट LC है। सो दिस इज द oscillation of charge in, frequency of oscillation of charge in LC circuit। तो ये बेसिकली आपका कौन सा सर्किट है, इट इज एन LC सर्किट है। नाउ एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू जब 0 होता है, चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, QM होता है, चार्ज जो है मैक्सिमम होता है। दस Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए Q इज इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू QM कॉस ओमेगा नॉट T प्लस 5 है। तो अगर Q के जगह पे मैं QM डाल देता हूँ, विल बी इक्वल टू QM कॉस ऑफ ओमेगा नॉट, टाइम T कितना है 0 है, प्लस कितना है 5 है। मीन्स ये कंडीशन डाल रहे हैं एट टाइम T इक्वल टू 0, मेरा टाइम कितना है, टाइम T जो है वो 0 है, तो चार्ज Q कितना हो जाएगा, चार्ज Q जो है क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा। तो ये QM कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मुझे cos फाई का वैल्यू कितना मिलेगा, cos फाई इज़ 1। सो एट टाइम T इक्वल टू 0, Q इक्वल टू QM, दस cos फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0। cos कितना पे, cos 0 पे कितना होता है, 1 होता है। तो cos फाई का वैल्यू 1 है, इसका मतलब फाई का वैल्यू कितना है, 0 है। Therefore in this case Q इज इक्वल टू कितना है, Q इज इक्वल टू QM cos ऑफ ओमेगा नॉट T है, क्योंकि फाई कितना है 0 है। इसका मतलब चार्ज Q कितना बन जाएगा, फाई 0 है, इसका मतलब चार्ज Q बन जाएगा QM cos ऑफ ओमेगा नॉट T, ओमेगा नॉट T बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया चार्ज। सो व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, the current in the circuit is I is equal to क्या है, माइनस dq by dt है। इसका मतलब ये कितना है, माइनस d dt। q कितना है, q इज QM cos ओमेगा नॉट T है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस QM जो है बाहर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन, सो इट इज माइनस साइन ऑफ ओमेगा नॉट T। ओमेगा नॉट T का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट। इसका मतलब ये कितना मिलेगा, माइनस QM ओमेगा नॉट साइन ऑफ ओमेगा नॉट T। ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। QM ओमेगा नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, QM ओमेगा नॉट इज IM, सो IM साइन ऑफ ओमेगा नॉट T मिलेगा। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट। IM इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, वेयर IM जो है इट इज़ इक्वल टू QM ओमेगा नॉट है, इज़ द पीक वैल्यू ऑफ करंट, इज़ द पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द LC ऑसिलेशन। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है LC ऑसिलेशन क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा है हाउ LC ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड, मीन्स ऑसिलेशंस कैसे पैदा होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ LC ऑसिलेशन। यहाँ पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकाला है और करंट इन द सर्किट निकाला है, ठीक है। और आगे वाई LC ऑसिलेशन आर नॉट रियलिस्टिक, और थोड़ा एनालिसिस था, उसको अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी से आ गई है और मेरा घर में जो है बारिश का साउंड बहुत आता है। ऑब्वियसली ये वीडियो में आपको सुनाई दे रहा है, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी स्टॉप कर लूँ। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ मैं कभी वो टॉपिक्स छोटा मोटा टॉपिक्स है उसको मैं कवर कर दूँगा, ठीक है। टिल देन आप वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखिए। मैं बार बार बोला हूँ अल्टरनेटिंग करंट जो है ये कम्प्लीटली एनालिटिकल है, मैथमेटिकल है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। डेरिवेशन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। सब लोग मेरा वीडियोस देखने के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी इन माय जर्नी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।